how do you see the mental health and physical health related to each other? If you are a vegan, for example, then it's a choice. Your choices are your choices. People are becoming very extreme, polar opposites to each other. आप एक सोशल मीडिया के लिए नहीं जी सकते हैं. Stop chasing short term fame. जिसमें वैल्यू नहीं है, जिसमें रियल वैल्यू नहीं है, वो ज्यादा दिन तक टिकेगा नहीं। And सबसे बड़ी चीज, गांधी जी, हाँ, when he led this big thing हाँ. for the country, तो उनके पास कौन सा सोशल मीडिया था? हाँ. You have gone through the journey and you have seen so many people going through the same journey. So how do you see the mental health and physical health related to each other? Especially in this era where a lot of mental issues are there. और आजकल तो इंस्टा एज हो गई है. Gen Z, they are already on class 8, 9, 7. Yes. Kids are on Instagram. Right. So वहाँ पे mental health because of their how they look matters. Right. तो वहाँ पे how do you see the connection and how one should actually see? See, unfortunate part of today's day and age is that people have started posting their identity. Like if you are a vegan, for example, then it's a choice. Correct. People have started creating a narrative around that identity. That Boosting. has become their identity. Like being religious, for example, I understand. Yeah. is your choice, Yes, right? yes. But then you would portray each and every Everything content or from- each and everything from that angle. from that one narrative. So that's where people, I guess, are going wrong. Your choices are your choices, your lifestyle, your likings, but they should not get such a big narrative. मतलब on आपके your- आइडेंटिटी से इतना ज्यादा है कि हाँ, अगर नहीं वही आइडेंटिटी वही आइडेंटिटी बन गई है आपकी. हाँ. और whenever somebody if somebody is non vegan or non हाँ, तो फिर वो आपके लिए वो तो सही दुश्मन हो गए. नहीं है. एग्जैक्टली. सो वो चीज की वजह से क्या हो रहा है कि पीपल आर बिकमिंग वेरी एक्सट्रीम, पोलर ऑपोजिट्स टू ईच अदर, एंड दैट इन अ वे इज माइट बी क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ मेंटल हेल्थ इश्यूज एज वेल, बिकॉज you're projecting something, you might not be getting enough likes, enough engagement. Correct. और आप ये नहीं समझते हो कि this is an algorithm. This is somebody sitting in the US setting up an algorithm. Correct. Which has nothing to do with your talent, your soul, your how you are as a person. But it fits their agenda or it fits their pockets कि भाई मैं ऐसे algorithm रखूंगा तो it's getting me more ads, more conversions or whatever. So आप एक social media के लिए नहीं जी सकते हैं. Correct. You have to think beyond social media, you have to live beyond social media, and real connections आज के डेट में rare हो गए. बट सपना ये चीज जो व्यूअर्स होंगे देख रहे होंगे जिनके पास मान लो इंस्टाग्राम की इतनी फॉलोअरशिप नहीं है, हाँ. वो ही बोलते हैं अच्छा सपना बोल सकती है बिकॉज शी हैज 1.5 मिलियन, हमारे पास तो नहीं है. हाँ. वी वांट टू हैव दैट काइंड ऑफ इन्फ्लुएंस, बट दोज पीपल हु आर लुकिंग अप टू यू आर लाइक देयर आर मेनी इन्फ्लुएंसर्स हु हैव सच अ बिग फॉलोइंग. तो उनके लिए मतलब हाउ डिड दे थिंक इन दिस डायरेक्शन कि यार ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लाइफ में? देखिए, फॉलोअर्स कितने हैं उससे ज्यादा आई वुड ऑलवेज से दैट यू शुड हैव एन इम्पैक्ट इन टर्म्स ऑफ व्हाटएवर यू से शुड बी हर्ड बाय पीपल. चाहे वो 500 फॉलोअर्स हो, 5000 फॉलोअर्स हो, 1.5 मिलियन फॉलोअर्स हो या 10 मिलियन फॉलोअर्स हो. डोंट लूज योर वॉइस और योर ऑथेंटिसिटी और योर इम्पैक्ट जस्ट इन चेजिंग अ नंबर, बिकॉज इट्स लाइक इनकम. आप आज 10 लाख कमा रहे हो पर एनम, दैट विल नॉट सेटिस्फाई यू नोइंग कि मेरा फ्रेंड 15 लाख पर एनम कमा रहा है. सो इट्स लाइक कंपैरिजन ना, मेरी साड़ी उसकी साड़ी मेरी साड़ी से सफेद कैसे है, तो वो आपकी चैन, आपकी नींद वो खराब करेगा. राइट. सो डोंट चेज नंबर्स, इंस्टेड व्हाटएवर कंटेंट यू आर पुटिंग और व्हाटएवर यू आर डूइंग, बी ऑथेंटिक. तो वो इम्पैक्ट अच्छी करेगा. एंड यू नेवर नो, समथिंग माइट वर्क आउट एंड पीपल विल फॉलो यू. बट आई ऑलवेज से कि भाई स्टॉप चेजिंग शॉर्ट टर्म फेम. यस यस. एक काचा बादाम और लुकिंग लाइक अ वाव और दिल पे चलाई छुरिया विल गिव यू फेम, बट शेल्फ लाइफ इज very short. Correct, right? correct, So correct. if you want to be authority in your field, you keep posting whatever you want to say, not what is working in the market. Correct. Because market में आप चल जाओगे, short term fame मिलेगी for sure, it will help you earn money, but then you will be a lost cause. थोड़े टाइम के बाद nobody will remember you. मतलब जिसमें वैल्यू नहीं है, जिसमें रियल वैल्यू नहीं है, वो ज्यादा दिन तक टिकेगा नहीं. So even if you have 1 lakh followers or 100k, 10k, whatever, but they having an impact should they are listening to you. वो मुझे लगता है ज्यादा सेटिस्फेक्शन देता है. या अननोन 1 मिलियन है जिनको कुछ पता ही नहीं है, you are making content for fun or something. So I think that is the identity that person should have, should not be replicated. like कि मुझे सपना व्याज बनना है या मुझे XYZ बनना है. No, you should have your role models कि भाई मुझे कहाँ जाना है.
पर दैट शुड नॉट किल योर स्लीप. यू ऑलवेज, देखिए हम सबको एस्पिरेशंस होते हैं और वो होने चाहिए, बिकॉज अ लिटिल यूस्ट्रेस इज गुड. इट हेल्प्स अस वेक अप इन द मॉर्निंग. वरना हमें कोई ड्रीम्स ही ना हो, गोल्स ही ना हो, कोई चेज ही कुछ ना करना हो, तो इंसान सुबह उठेगा ही नहीं. सो लिटिल बिट ऑफ एस्पिरेशन और यूस्ट्रेस और ambition should be there, but not at the cost of your health and your authenticity, selling your soul at times. Correct. तो वो मत करो. And ultimately ना जो रहते हैं या जो आज इम्पैक्ट करे या जिनको हम सुनते हैं, हम उनके फॉलोअर्स या ये सब नहीं देखने चाहते हैं. True. कितने सारे ऐसे एक्टर्स हैं जिनके शायद फॉलोअर्स नहीं है. I just got to know yesterday that person like Rani Mukherjee is not on social media. And सबसे बड़ी चीज, गांधी जी, when he led this big thing for the country, कोई इन्फ्लुएंस, हाँ, तो उनके पास कौन सा सोशल मीडिया था, बट लुक एट व्हाट ही कुड डू. इम्पैक्ट कितना. हाँ, तो वो इम्पैक्ट पे जाते हैं. उनके पास ना कोई सोशल मीडिया था कि टुमारो वी आर गोइंग, यू नो, यहाँ पे वी आर मीटिंग गाइस, चंपारण में जा रहे हैं, हे गाइस लेट्स मीट टुमारो 5 PM शार्प, ऐसा थोड़ी था. सो इट्स